बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अभी तो आपके स्कूल्स खुलने के दिन शुरू हो चुके हैं, तो बस फिर लग जाएं स्टडीज़ पर। लेट्स स्टार्ट विद आवर today's lecture, and that is from SSC 2 10th biology, and coordination and control is my today's topic from coordination and control chapter number 12, and I am at endocrine gland system. So first of all, look at the quick review. So for the quick review, I have a question for you that give a single difference between exo and endocrine gland system. So you need to differentiate the exocrine and endocrine gland system, and you need to write a single difference for this question, but you please need to write the maximum differences between the two. And then what will happen in the absence of ADH? So what do you think what will happen in the absence of ADH? And then name two hormones which are produced by the brain. And you know that there are only two hormones which are produced by the brain, mainly from hypothalamus. And you need to tell me the names of these two hormones which are produced directly by hypothalamus, no other gland but from the hypothalamus. And then what is the importance of oxytocin? Why oxytocin is important to our body, why oxytocin is important to the human species, and you need to tell the answer of this as well. If you know the answers, you please check your knowledge regarding these questions about the last lecture. And if you found any difficulty, you can contact me. You can write me in comments. So let's start with today's lecture, and that is thyroid glands. So I am at thyroid gland, and thyroid gland is actually largest ductless gland. Let's look at the diagram first. Yeah. So I am interested in showing you this diagram first of all. This one. So this is your neck area, right? That is our neck region. And in neck region, we have our thyroid gland situated. This pink color, light pink shaded is our thyroid gland. That is the larynx, and this is the whole tube is trachea. You all know that trachea is cartilaginous, and that blue colored bone is showing you the cartilage structure and neck area. ठीक हो गया, ये तो हमें समझ में आ गया कि that it is present on the windpipe, on the trachea. Thyroid gland is present on the windpipe on or the trachea right below the larynx. Larynx के बिल्कुल नीचे, जिसको हम laryngeal prominence या Adam's apple भी कहते हैं, इस bone के बिल्कुल नीचे ये present है हमारी neck पर, and that is called as thyroid gland. And I'm hoping that you have get the idea about its location. Now look at this diagram, another diagram. I like this diagram. This is larynx, this is trachea, and trachea has once again the the thyroid gland, left lobe. This is left lobe, this is right lobe, and ये कोई lobular big सा structure है, and it is found present on our trachea. ठीक है, आपको हमें इसकी लोकेशन पता चल गई. तो सबसे पहले हमने इसकी लोकेशन देखी. Now means that they are present on our neck below the larynx, on neck below the larynx. So thyroid gland is the largest ductless gland found in the anterior neck के फ्रंट वाले पोर्शन पे, एंड जस्ट बिलो द लेरेंजियल प्रोमिनेंस, एडम्स एप्पल या लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे ये प्रेजेंट है, रफली बटरफ्लाई शेप, कुछ वाकई बटरफ्लाई शेप की तरह लग भी रहा है. ओके, अब थोड़ा सा इसका रफली फंक्शन एक दफा देख लेते हैं कि ओवरऑल ये कर क्या रहा है. राइट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. हाउ इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज गोइंग टू हेल्प द हाइपोथैलेमस इन कंट्रोलिंग द बॉडी टेम्परेचर, आर मूड्स, आर एक्साइटेबिलिटी. कोई खुशी की बात सुनते हैं तो वी गेट हैप्पी, कोई दुख की बात, कोई दुख वाली बात सुनते हैं, कोई इमोशनल बात हम सुनते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं. ठीक है ना? सो दैट इज बेसिकली कंसर्न विद आर मूड एंड एक्साइटेबिलिटी, कि हम डिफरेंट तरह से डिफरेंटली वाक़यात पे हम बिहेव करते हैं. कभी कभी हमने देखा कुछ बच्चों के साथ कुछ भी किया जाए तो वो एक ही ख़ास मूड में रहते हैं, थोड़े से ऑफ मूड में रहते हैं, थोड़ा सा शाय रहते हैं. सो दिस इज़ दैट कैन बी द रीज़न ऑफ लो थायराइड सिक्रीशंस इन हिज बॉडी, जो थोड़ा सा जिनको हम स्लो लर्नर्स कभी कह देते हैं. ऐसे कहना नहीं चाहिए, वैसे आज के दौर में कोई स्लो लर्नर नहीं है, बट आई बिलीव. एंड एनीवेज, पल्स रेट, डाइजेशन एंड अदर्स. आपने जो भी कुछ खाना खाया उसको डाइजेस्टिव सिस्टम ने किया, लेकिन उस प्रॉपरली उसको द कंप्लीट एंड द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ द फूड एंड देन assimilation of the food is very very important. In your ninth class you have read that assimilation of the food means to make the
production of those proteins and carbohydrates which are not needed to your body, right? This is what is called as assimilation. And all these things are under the supervision of thyroid gland. वो आपका basal metabolism control करता है. Thyroid gland आपको help करता है आपका basic metabolism control करने में. Furthermore, it has a role in growth. Obviously, ये along with the somatotrophin बचपन से हमारे साथ साथ आ रहा होता है, ताकि हमारा हम जो भी खाना खाएं उसको properly digest करके हर जगह जगह जहाँ जिस molecule को लगना है वो लगाए, right? Then it has role in the development. Obviously, it stimulate the heart rate. The heartbeat rate is very, very under the control of thyroid gland. It stimulates the heart contraction, stimulate the synthesis of proteins and carbohydrates. So this is another signal for the production of the protein and carbohydrates. I have already told you about the assimilation of the food. This is actually the assimilation of the food. And degrade cholesterol and triglyceride. So whenever you are in need of having more energy, they are going to digest all those fatty structures present in our body, stored in our body for providing us the energy. Above all, it is going to help the liver in controlling the storage of all these and then breakdown of all these high energy compounds for maintaining our body temperature. For maintaining our body temperature, आपने हमारा कोर टेम्परेचर देखा ना, आपके हाथ और पाँव बेशक ठंडे हो रहे हो मगर आपकी बॉडी आपका ट्रंक रीजन वार्म होता है. That is going to show you a 37 degrees Celsius. This is very very important for our survival because हमारे organs इसी temperature पे survive कर सकते हैं. तमाम तरह enzymes active होते हैं इसी temperature पे. So this temperature is very very important for our body. और winters में इसीलिए हम थोड़े थोड़े sluggish हो जाते हैं ना, क्योंकि temperature low होता है. हमारा दिल नहीं करता कोई फटाफट उठ के कोई काम करें. हाँ, जब काम में लग जाते हैं तो फिर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज जैसे स्पेशली रजाई में बैठ गए, कम्बल में बैठ गए, आप तो कोई ना पूछे, हम हीटर के आगे बैठे हुए हैं तो हमसे उठना ज़रा डिफिकल्ट हमें लगता है. सही, क्योंकि बिकॉज दिस इज द लो टेम्परेचर अराउंड अस एंड दैट लो टेम्परेचर ऑल्सो अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ आवर एंजाइम्स एज वेल. And then thyroid gland secretions. क्या क्या secrete कर रहा है? So mainly it is going to secrete two major secretions, thyroxine and calcitonin, right? Thyroxine and calcitonin. ये चीज़ तो यही याद कर लो, right? Thyroxine and calcitonin. Calcitonin and thyroxine are the two secretions produced by the thyroid gland. Then once again thyroid gland, ये मैंने figure इसलिए डाली that you just to tell you that there is more than one type of thyroxine is produced by our thyroid gland. Although our book as far as strength is concerned, so they just have mentioned the thyroxine and the calcitonin, but in actual this is there are more than one type of thyroxine in our blood. ये सब आपको बस दिखाने के लिए this is necessarily important you to learn, but you need to learn what that one is thyroxine and another is calcitonin. जैसे मैंने ये स्लाइड्स बनाई होती हैं, ट्राई टू अटेम्प्ट योर पेपर इन द सेम वे, बिकॉज जितनी आप अपने एग्जामिनर को पढ़ने में, पेपर को पढ़ने में आसानी देंगे, उतने ही आपका स्कोर करने का चांस बढ़ जाएगा. अदरवाइज पैराग्राफिंग होगी तो वो पढ़ेगा तो सही, जवाब उसे ढूंढना पड़ेगा. ठीक है ना, तो बेहतर है कि जो चीज़ें आपको अच्छी तरह से आती हैं उन्हें प्रोमिनेंट करके लिख दिया जाए. So anyways, the thyroid gland is going to produce T3, T4. These two are the thyroxines, type of thyroxines. और ये कब produce होंगे? Whenever hypothalamus is going to direct the interior lobe of pituitary, and interior lobe of pituitary will going to produce thyroid stimulating hormone, and this hormone is going to produce, uh, give the message to the thyroid gland, and in that case, thyroid will produce their secretions, maybe T3, maybe T4, maybe calcitonin, depending upon the need of our body. और जब आपका वो काम कंप्लीट हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होगी थायराइड की, थायरोक्सिन की. हायर अमाउंट ऑफ थायरोक्सिन विल गाइड द हाइपोथैलेमस टू स्टॉप फर्दर रिलीज ऑफ थायरोक्सिन. ठीक हो गया. सो दिस इज द फीडबैक मैकेनिज्म एज वेल, वी विल डिस्कस लेटर इन द लेक्चर्स, राइट? वो भी हम डिस्कस करेंगे. देन इज एबनॉर्मल सिक्रीशंस, थायराइड ग्लैंड एबनॉर्मल सिक्रीशंस, राइट? जैसे हमने सोमेटोट्रोफिन की देखी थी कि देयर वर एबनॉर्मल सिक्रीशंस, देयर आर सर्टेन डिजीजेस. ऑब्वियसली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड होम्योस्टेसिस? होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस स्टैटिक. आपने अपनी बॉडी की नैरो रेंज पे होती है हमारे लिए, है ना, हमने अपने इंटरनल कंडीशंस को एक नैरो रेंज पे रखना होता है, हमने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना होता है. सो व्हेन एवर वी आर गोइंग टू डाइवर्ट फ्रॉम आवर होम्योस्टेसिस, दैट वुड बी कॉल्ड एज अ डिजीज. याद रखें, अगर आप होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर पा रही आपकी बॉडी, दिस वुड be result in this would result in some disease, and that what is called as abnormal secretions. And abnormal secretions of thyroid glands are
So it is there are resulting three major conditions: goiter. One of the major condition is goiter, then hypothyroidism and hyperthyroidism and hypothyroidism. These are the abnormal secretions of thyroid gland. The results of the abnormal secretions of thyroid gland, ये results हैं, तीन problems हैं जो अगर वो abnormally secrete करे तो क्या होता है. Then I'm going to discuss the goiter. ठीक है. अब ये goiter क्या चीज़ है? Goiter is actually a physical condition. ठीक है. इनमें क्या होता है कि हमारा जो thyroid gland है, it is going to swell out, right? ये swell हो जाता है और बड़ी सी neck में ball लगने लगती है. पहले मैं इसकी reason आपको बता देती हूँ. The reason is basically the iodine. Iodine is importantly present in our जो हमारा जो होता है फूड में प्रेजेंट होती है ना हमारे, बेसिकली ये सी फूड में प्रेजेंट होती है. और चूंकि हम ज़्यादातर सी फूड नहीं लेते तो किसी को ये थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है. दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं ना, यानी कि जो थोड़े पहाड़ों पे, यानी कि थोड़ा सा जो ऊपर रहते हैं, मतलब हम तो प्लेन एरिया पे रहते हैं ना, तो वहाँ से भी सारे मिनरल्स सॉइल में कम हो जाते हैं, तो उनको भी इस ग्वाइटर काइंड ऑफ कंडीशंस को फेस करना पड़ सकता है. बट एज फार एज वी आर कंसर्न, एज वी आर लिविंग इन प्लेटो, तो हमारे साथ इतना नहीं होता. हम हमारी फूड में ये शामिल है. और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि हमें आयोडाइज सॉल्ट यूज़ करना चाहिए. ठीक है ना. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज हम उतना ज़्यादा सी फूड नहीं यूज़ करते ना, तो वी कैन यूज़ iodized salt. This is important because iodized salt will going to help you in giving you the right amount of the iodine. I mean the daily uptake of iodine, and this is important for the production of normal thyroxine. ठीक है. So normal working of thyroxine. इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका thyroid gland सही काम नहीं कर रहा. ठीक है ना. गोइटर में वो प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन नॉर्मली आपको कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम्स उसके नहीं होते. लेकिन आयोडीन होगा तो वो प्रोडक्शन नॉर्मल रहेगी. सो आयोडीन इज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन. If a person lacks iodine in diet, thyroid gland cannot make its hormone. और वो कोशिश करता रहेगा कि ज़्यादा आयोडीन का मैसेज तो आ रहा है क्योंकि बॉडी में नीडेड है. तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन is going to direct the thyroid gland to produce more thyroxine, but it is unable for the thyroid gland to produce thyroxine because there is no iodine in the blood. So in that case, thyroid gland going to be enlarged, and in this condition thyroid gland enlarges, and this order is called as goiter. Now what is a goiter is? इस फिगर को देखते हैं पहले. एक फिगर है, एक पता नहीं हजरत हैं शायद, उनकी देखो नेक में एक बॉल सी नजर आ रही, लगता है बॉल खाली है ना. सो ऐसा नहीं हुआ, मगर बॉल नहीं खाई उन्होंने. ये हमारा नॉर्मल थायराइड है, एंड दैट इज द एनलार्ज्ड थायराइड. नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाई दिस ग्लैंड इज गोइंग टू एनलार्ज? क्यों हो रहा है ये enlarge? बिकॉज ये इसलिए enlarge हो रहा है या हो चुका है enlarge क्योंकि ब्लड में आयोडीन की अमाउंट कम है. प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. द अमाउंट ऑफ आयोडीन इज लेस इन ब्लड, एंड थायराइड सेल्स, द सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड आर ट्राइंग हार्ड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन, और वो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो स्वेलिंग हो रही है उसके अंदर. ठीक है. अब जो ग्वाइटर है ये हर तरह की कंडीशन में हो जाता है. ये हाइपोथायराइडिज्म में भी हो जाता है, ये हाइपरथायराइडिज्म में भी हो जाता है, और ये बगैर हाइपर हाइपर के भी हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मेल न्यूट्रिटिव पर्सन, लाइक द पर्सन that is not going to take the iodine in diet. So this is another, sorry, this is another diagram I have. There are these two ladies. Basically this is more common in women. One thing more important about goiter, that it is more common in women. And I also have all the examples of the same, कि इनकी भी नेक में थोड़ी स्वेलिंग है, इनकी भी नेक में थोड़ी सी स्वेलिंग है. अच्छा, इसकी ना कोई फिजिकल कंडीशन है नहीं. ठीक है. ये हो सकता है कि आप जैसे स्ट्रेट लेटे हुए हैं तो आपको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, राइट. तो दिस इज वन ऑफ द सिम्टम कि आपको सांस लेने में तो दिक्कत हो रही है. कफिंग हो रही करेंगे शायद आप. सो सफोकेशन थोड़ी बहुत हो सकती है, बट एट टाइम्स, बट नॉट ऑल द टाइम ऑब्वियसली. लेकिन अब जैसे जैसे आपको स्वेलिंग हो रही है, यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, यू हैव टू कंसल्ट हिम. और इन ऑर्डर हो सकता है, और ये जिस तरह हुआ ना, और आप डॉक्टर के पास गए तो विद इन 2 मंथ्स, 2 मंथ्स बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, शायद उससे भी पहले इट विल गेट क्योर्ड, राइट. ये क्योर हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपको डाइट डॉक्टर आयोडीन दे देते हैं, और आपकी डाइट में चूंकि जब आयोडीन शामिल हो जाता है तो दिस विल रिजॉल्व. So that what is called as goiter, and I have told you everything about goiter, that it's not a big deal. It is a simple a disease of malnutrition. Iodine is the major cause, and if it is not going to take, and then the goiter will be sorry, our thyroid gland will enlarge, and
But if you are taking the iodine once again in your diet, this will be the symptoms will be subsides. एंड देन हाइपोथायरॉयडिज्म, एक और सिचुएशन आ रही है हमारे पास, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जब थायराइड ग्लैंड कम होगा, राइट? इट इज अ कंडीशन इन विच योर थायराइड ग्लैंड डज नॉट प्रोड्यूस इनफ थायराइड हार्मोन। मतलब जब थायराइड ग्लैंड हमारा प्रॉपर वे में थायराइड थायरॉक्सिन नहीं बना पा रहा, ठीक है ना? अब क्या हो रहा है? Sometimes it is also called as underactive thyroid. Okay, it is also called as underactive thyroid. अब hypothyroidism slows down a person's metabolism. मैंने इसलिए आपको एक दफ़ा रफली ना इसके फंक्शंस बता दिए थे, तो अब वो जो जो कुछ कर रहा था ये हाइपोथायरॉयडिज्म में। अक्सर छोटे बच्चों के अंदर 2 3 4 ईयर्स में बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, ठीक है ना? लेकिन अगर वो एक्टिव नहीं है तो यू दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट, right? You need to go to the doctor, you need to consult someone because of the slowness of the it can be a major important reason कि बच्चा, this basically helps you in ability enhancing your ability to think. आप सोच रहे हैं, आप समझ रहे हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो बच्चों का जब मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो वो ऑब्वियसली उनको एनर्जी नहीं मिल रही प्रॉपर, पूरी बॉडी को जब एनर्जी ही नहीं मिल रही, बेसिकली एनर्जी से काउंट है, आप काम कर रहे हो ना, आपके ब्राउन ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपना कोई अच्छा रिजल्ट शो नहीं कर सकते। So this is now this is what is hypothyroidism, a condition caused by an underactive thyroid gland, ठीक है ना? अंडर एक्टिव हो गया, इट कैन बी ट्रीटेड विद थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट मेडिकेशन। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे बड़ों को जिन्हें हाइपोथायरॉयडिज्म का केस होता है, पहले तो पता ही नहीं चल रहा होता कि हाइपोथायरॉयडिज्म का केस है, सॉरी, तो पहले तो पता ही नहीं चलता। तो जब पता चलता है तो वो डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देना शुरू करते हैं और आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं। आप जो बहुत स्लो हैं, आपका हार्ट रेट स्लो हो जाता है, आपका बेसिक मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, सो दिस विल हेल्प अस while taking that hormone therapy. Although hormone therapies are not considered good for some reasons, but जाहिर बात है अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो कुछ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक आप लेना पड़ेगी। इट स्लोज डाउन अ पर्सनस मेटाबॉलिज्म, भूख वगैरह कम लगने लग जाती है इन लोगों को। सो इट लीड्स टू वेट गेन एंड स्लगिशनेस, और वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है और बंदा सुस्त रहता है। सो दिस कुड बी द रीज़न ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। मुझे पता है आप लोग ऐसे भी सुस्ती हैं और आप बैठे बैठे खाते भी रहते हैं तो वेट भी गेन करें, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, ठीक है? सो एक्टिव हो जाएं, शो करें कि आपका आप यू आर नॉट द पेशेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। And then hypothyroidism is symptoms पे जा रहे हैं हम। The leading to symptoms like weight gain, sluggishness, ये बता चुकी हूँ, सुस्ते हैं, and then slow heart rate, feeling cold, और मतलब जैसे नॉर्मल गर्मियों में बहुत गर्मी इन्हें नहीं लगती, ये एक गुड सिम्टम भी होता है ना, और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और सिंपल ब्लड टेस्ट कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैन डायग्नोस हाइपोथायरॉयडिज्म। आपको इससे पता चल जाता है कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्योंकि पीछे से मैसेज ही सही नहीं आ रहा, बार बार आ नहीं रहा, आपका थायरॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, सो वो आपको ऑल्दो इट्स अ जेनेटिक प्रॉब्लम, ठीक है? सो कैन डायग्नोज हाइपोथायरॉयडिज्म। और इसकी ट्रीटमेंट में क्या शामिल है? जस्ट सिंपल थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट मेडिकेशन कैन ट्रीट इट, ओके? सो इट्स वेरी इजी टू रिजॉल्व द इशू, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डायग्नोसिस। अगर डायग्नोज ही नहीं हो पा रहा तो देन यू विल ऑब्वियसली यू विल सफ़र, यू नो। And then hyperthyroidism, then the next situation is hyper, when more thyroxine will produce than the needed. So what are the characteristics? Due to overproduction of thyroxine characterized by high energy, obviously जब नहीं था तो स्लो थे, sluggish थे, अब ये बहुत हाइपर एक्टिव हैं, इनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, बहुत भूख लगती है इन्हें, बहुत खा रहे हैं, बहुत फिर भी पतले से हो सकते हैं, ये होगा कि बहुत पतले से हैं। इंक्रीज हार्ट बीट, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग, अक्सर कभी देखा हो शायद आपने ऐसा कोई पेशेंट जिसके हाथों में बहुत पसीना आता है, सो दिस कुड बी अ रीज़न ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। शिवरिंग ऑफ हैंड्स, और कभी ये तो अब जो शिवरिंग ऑफ हैंड तो एक्सट्रीम एक्सट्रीम हाई शो पे जाएगा ना, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा रिलीज होता है इसके अंदर। Okay, then hyperthyroidism, the disorder in which your thyroid gland makes and releases more thyroid hormone than your body needs. And then hyperthyroidism, overactive. जैसे उसमें हमने underactive कहा था, इसको हम overactive कह रहे हैं। Your thyroid gland produces too much hormone, too much of the hormone
थायरॉक्सिन, ये डेफिनेशन थी। एंड देन दीज आर द सिम्टम्स। इतना ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं कि थक जाते हैं ना। एंड देन वेट गेन की रीज़न ये होती है कि आप खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। सेंसिटिविटी टू कोल्ड, सेंसिटिविटी टू हॉट, डिप्रेशन आ जाता है, इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं कि अब ये मैं नर्व इम्पल्स में अगर पढ़ाऊँगी फर्स्ट सेकेंड ईयर में, उसमें इसका रीज़न दूंगी वाई पीपल गेट डिप्रेस्ड व्हेन व्हेन दे हैव मोर थायराइड। सो मेमोरी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, गोइटर मैंने आपको बताया था आता है, हेयर लॉस, मसल पेन एंड इनफर्टिलिटी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। नॉर्मली बड़ों में होता है, ये बच्चों के अंदर कम ही होता है। एंड देन ओवर एक्टिव थायराइड। अब हाइपरथायरॉयडिज्म, अब ये हेल्दी खातून की एक इमेज दिखाई हुई है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में ये अब ये आइज फटी हुई सी लगती हैं। तो वन ऑफ द मेजर एक्सोप्थेलमिक गोइटर इसको हम कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी आइज का ना वाइड हो जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। और पसीना हाथों में आना एक और सिम्टम है। शिवरिंग तो मैंने बताया एक्सट्रीम केस है, ठीक है। ओके जी, एयर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कैल्सिटोनिन. Calcitonin regulates the blood concentration of calcium, and it decreases the level of calcium ions in blood and promotes the absorption of calcium from blood into bones. ये मैं थोड़ी देर में आपको नेक्स्ट फिगर में समझाती हूँ क्या हो रहा है। अच्छा जी, कैल्सिटोनिन नाम से पता चल रहा है कि कैल्शियम से कुछ काम करना है। इसने क्या करना है, इसने ब्लड की कैल्शियम को लो करना है। How it regulates? It regulates by decreasing the amount of calcium in the blood. अब ये डिक्रीज कैसे कर रहा है? मीन्स जैसे ब्लड में हाई कैल्शियम आया, आपने फूड ऐसा खाया जिससे ब्लड में एब्जॉर्प्शन हुई है कैल्शियम की, और या चले थोड़ी देर में बात करेंगे, या पे थोड़ी देर में बात करते हैं। बहरहाल एनीवेज, आपने कैल्शियम आपके ब्लड में काफ़ी ज़्यादा है। सो वो ब्लड क्या करता है, ये कैल्शियम वहाँ से पिकअप करेगा एंड देन पुट इट ऑन द बोन्स, हमारी बोन्स पे जाके डिपॉजिट कर देगा, ठीक है ना। द फंक्शन ऑफ द कैल्सिटोनिन इट टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ, मीन्स टू टेक इट टू द सेट पॉइंट ना, नॉर्मल पे लेके जाना है। सो हायर अमाउंट महसूस की उसने तो उसको नॉर्मल पे ले गया, और वहाँ से कैल्शियम गई कहाँ, कैल्शियम विल गो टू आर बोन्स, ठीक है ना। जो ये बोन्स पे चली गई, मतलब हमारी बोन्स स्ट्रेंथन करना भी इसका काम है कैल्सिटोनिन का। एक तो नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल को ठीक रखना है। अब आप खुद सोचो, अगर कैल्सिटोनिन नहीं आ रहा, हाई ब्लड कैल्शियम हो गया एंड देयर इज नो कैल्सिटोनिन, व्हाट विल हैपन इन दिस केस? किडनी स्टोन्स, ठीक है ना। कैल्शियम जाएगा ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, स्टोन्स बनाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। किडनी स्टोन्स वन ऑफ द मेजर रीज़न। आपका एक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, आपकी मस्कुलर एक्टिविटी के लिए कैल्शियम चाहिए होता है। आप बहुत एक्टिव कुछ अर्से टाइम तक बहुत एक्टिव रहेंगे, फिर थक जाएंगे, ठीक है ना। सो हाई कैल्शियम, आपको कैल्सिटोनिन का समझ में आ गया। और इसी तरह अगर कैल्सिटोनिन नहीं आ रहा ब्लड में, हाई कैल्शियम है, स्टोन्स तो बन ही रहे, फिर आपकी बोन्स पर भी तो जाके कैल्शियम नहीं लग रहा ना, एक और प्रॉब्लम आ गई। सो ओके, सो हाउ इट मेंटेन्स द कैल्शियम इन द ब्लड, ये देखते हैं हम थोड़ा सा। इनहिबिट्स कैल्सिटोनिन, थायराइड ने रिलीज की कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन लोअर्स द कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इसने ब्लड में कैल्शियम का लेवल लो कर दिया। वाइट वाइट डॉट्स का मतलब कैल्शियम है। अच्छा, एक काम इसने ये किया, अब लोग जब किया ना इसने ब्लड में, तो इनहिबिट्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन। जब ब्लड में कैल्शियम ज्यादा आई हुई है तो वो कैल्सिटोनिन गाइड कर रहा है डाइट को, इंटेस्टाइन्स को, कि आप अभी बहुत इनफ कैल्शियम है, आप जाने दो, वेस्ट में होने दो इसे, क्योंकि अगर मैंने पिकअप कर ली तो स्टोन्स वगैरह बनाने के वो वजह बन सकती है। बोन्स पे डिपॉजिट की, प्रमोट्स डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम आयंस इनटू बोन्स, इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एंड स्टिमुलेट्स ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। उसने न्यू बोन सेल्स बनाने में हेल्प की। और इनहिबिट्स कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, एक्सक्रीट इन द यूरिन। जो किडनीज भी क्या करती हैं, कैल्शियम पिकअप कर लेती हैं ना। लेकिन अगर हाई ब्लड, अगर कैल्सिटोनिन आ गया तो कैल्सिटोनिन ने उसे कहना है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इनफ कैल्शियम इज देयर इन द ब्लड, ठीक है। सो ये इस तरह कैल्शियम को रेगुलेट करता है। लेकिन अगर कैल्सिटोनिन नहीं आ रहा तो किडनी क्या करेगी, इट इज गोइंग टू पिक अप द कैल्शियम, ठीक है। इंटेस्टाइन क्या करेगी, ये पिकअप करेगी सारी कैल्शियम को, ठीक है। इसका मतलब होगा कि ब्लड में कैल्शियम की अमाउंट कम है, ठीक है, तो वो पिक करती रहेगी। सो कैल्सिटोनिन की ड्यूटी क्या है, टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। और ब्लड में अगर हाई है तो वहाँ से कैल्शियम पिक करना, बोन्स पे डिपॉजिट करना। बाय लोअरिंग द कैल्शियम इन द ब्लड इज द ड्यूटी ऑफ द कैल्सिटोनिन, और
promotion of the bones, ठीक है ना, deposition of the calcium in the bones. So this is what about the calcitonin. ये figure ध्यान से देखना, बहुत interesting है. And then is the recap of the thyroid gland location neck है, larynx के नीचे location आ गई. And then the thyroid gland secretions हैं, secretions आपको पता है, thyroxine and calcitonin. And then results of the abnormal secretions of thyroid gland are these: goiter, hyperthyroidism and hypothyroidism. और तो डिटेल्स आप पीछे देख सकते हो. And this is the main headings you need to make while writing the thyroid gland. ठीक है, इसी तरह proper way में अलग अलग headings बना के attempt करोगे, then you will get the marks which you deserve. Okay ji, I thank you all for the patience listening. Any questions? If you have any questions, you can ask me, you can write me in the comments. And अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो मुझे लगेगा आपको तो ज़बरदस्त समझ आ गई है. ठीक है, so all the best for your future, for your results, for your upcoming stand-ups or your exams. And if you need any help, I'm always there for you. Please take very, very good care of yourself. We will meet again in the next lecture. Stay tuned. Allah Hafiz.